मदरहुड क्लब जाना जाता है मातृशक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। फेसबुक पर अपनी सशक्त पहचान रखने वाले इस अद्भुत ग्रुप को एकता सहगल मल्होत्रा, इला पचौरी, मोनिका गोयल दीवान एवं पूजा दीक्षित अपनी अथक मेहनत से चलाते हुए निरंतर उन्नति की ओर ले जा रही हैं। 4 फरवरी की शाम को मदरहुड क्लब एवं ऑन्कोलॉजी फोरम से सौजन्य से विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। कैंसर के मरीजों के बीच आशा का संरक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय काव्य संध्या का आयोजन किया गया। इस काव्य संध्या के मुख्य अतिथि श्री संदीप महारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स बनाए गए। डॉक्टर SVS देव, हेड सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एम्स, इस आयोजन के सम्मानित सदस्य के रूप में जुड़े। Good evening, ladies and gentlemen. Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, and a very warm welcome to each one of you from across the country, across the globe, who have joined us for a very, very noble cause. Today, the 4th of February, 2022, World Cancer Day, a day where we all spread awareness about cancer. Motherhood Club has been creating awareness of different kinds of cancer in collaboration with Dr. Indu Bansal, a leading oncologist, Director Radiation Oncology at Narayana Hospital, Gurugram. We have covered 3 such sessions over the last 3.5 months. Every session has been appreciated by anyone and everyone who has heard that, because there is so much of information in layman terms for us to understand and to take care ourselves. The theme for the last couple of years for World Cancer Day has been to bridge the gap of the kind of treatment that is being provided to people across the globe, be it the doctor, be it the treatment, be it the machinery that is provided, and everything about cancer. Motherhood Club and Oncology Forum thought a little different this time. We thought that instead of creating just awareness about cancer, may I request my co-host, Dr. Indu Bansal, to take the event. Thank you very much. Mr. Marva, welcome back. Yes. Can you? Yes, sir. Very important lines कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर. Whether it is north, south, east or west, whether in India or abroad, whether you are in a lush green garden and looking at some color, the fact is there are 2 things which are much more beautiful than what you can actually see with your naked eyes. And these 2 things are your thinking and your feelings. And the best part is that both the things are right within you. On this very auspicious day, let's pray. Hey, Lord, give me good thinking. So, a very warm welcome to all the participants and the audience who have joined here. So I think today is World Cancer Day. And I would say that on the occasion of World Cancer Day, we wanted to celebrate all the patients of cancer who are fighting this disease. And they are winners in true sense. Let me tell you that every day I learn so much from each and every patient, and they are my inspiration. They keep me going. It's my privilege and honor to join this event. I would like to congratulate the Motherhood Club and Oncology Forum and Dr. Indu for taking this initiative, great initiative. And it's a very novel idea, the poetry, because we doctors try to heal the body most of the time, but we need to heal the mind and the soul. I think poetry has got that power. It is a great media to heal the soul of the patients. And I am sure this event is going to make a big impact and it will be very useful. Thank you, sir, for those words of wisdom. And please stay here if you can for some time. It would be a pleasure for us. Dr. Dev, there is a special dedication that has come for you from a patient of yours, Mrs. Nitima Babbar. All right. I remember her. She's a great, she's a wonderful human being. Yes, absolutely. Thank you. And she has requested me to read out this dedication for you. So with everybody's permission, I would proceed. The title of her poem is I Was a Game. I was a game on the operation table, half naked, fully stoned, but assured by my doctors able. The ability to save patients, and we also need to be encouraged for the same.
But the caregivers are those which are always left out. And sometimes there is more stress on the caregivers than the patient. And when I say caregiver, I mean the family member who's looking after the patient. So I think we should dedicate this entire session and poetry to the patient, caregivers, and the oncologist who is looking after the patient. With these words, I once more thank you, and I hand it over back to you. I would also like to tell कि sir की mother है, she is herself a great poet and she has a book, so which is in Gujarati. So I'll share the link and the name of the book. So those of you who understand Gujarati, they should definitely read that book. Thank you. सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर. What I'm trying to tell you here, whether it is north, south, east or west, whether you're in India or abroad, whether you're on the top of the hill or you're standing at a seashore, whether you are in a lush green garden and looking at some colorful flowers, or maybe looking at the most beautiful woman on earth. But the fact is, there are two things which are much more beautiful than what you can see with your naked eyes. And these two things are your thinking and your feelings. And the best part is that both the things are right within you. On this very auspicious day, let's pray, hey Lord, give me good thinking, give me good feelings so that I can do good deeds. And through my good karmas, I would love to convert this earth into heaven. This is what I believe, and I'm sure you will also believe in the same. Respected Ekta Sehgal ji, Dr. Indu Bansal ji, thank you very much. Let me take this wonderful opportunity to extend my heartiest thanks to all of you for inviting me here and giving me this wonderful opportunity to be part of this beautiful gathering, this August gathering. I've been attending large number of seminars, webinars and whatnot, and also connected to medical science. But this is for the first time. I'm really amazed. तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए अपने इस खास प्रोग्राम में कि आज आपने ये जो इंटरनेशनल पोइट्री डे के का एक मौका बनाया और जो मौका है वर्ल्ड कैंसर डे का और जिसमें आपने ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम आपने रखा हुआ है. मैं एकता जी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और इंदु बंसल जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ. मैं इंदु बंसल जी से एक बार जब बहुत पहले मैं मिला था तो उनकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है कि जो कैंसर के जो पेशेंट आते होंगे वो वैसे ही बहुत ज़्यादा ठीक हो जाते होंगे. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने बड़ा अच्छा, जैसे कि अभी मारवा साहब ने भी कहा कि बहुत ही शानदार आपने एक इनिशिएटिव लिया है और जिस तरीके से आपने एक पोइट्री को इसके साथ जोड़ा है ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत बात है. इसकी बहुत ज़रूरत है, इस तरह के मंचों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि जो अपने लोगों को जो खोते हैं तो शायद उनके जीवन में हमेशा वो एक स्टिग्मा बना रहता है और वो धीरे धीरे करके अपने जो लोग हैं उनको जाते हुए देखते हैं. तो इसका मैं भी स्वयं भुक्तभोगी हूँ क्योंकि 2015 में जो हमारी सिस्टर इन लॉ थी तो मैंने कैंसर से जाते हुए उनको धीरे धीरे देखा था तो मुझे मालूम है कि इसकी पीड़ा जो है वो क्या होती है. आज इस मौके पर मैं अपने मन की कुछ बात कहना चाहता हूँ कि जब ये बीमारी जब होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे डॉक्टर्स जैसे कि आप जैसे डॉक्टर्स हैं, इंदु जी को मैं जानता हूँ बहुत पहले से, सारे लोग जी जान लगाते हैं, कोशिश करते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पर वो कहते हैं कि भाई अब आप जो है ईश्वर के ऊपर आप छोड़ दीजिए कि अब इनको जो भी हालात हों, जैसे भी स्थितियां बने. तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में शायद एक रिग्रेट शायद रहता होगा कि उस समय पे शायद नेचर के नजदीक या कुछ मुझे लगता है कि थोड़ा सा जाना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी ब्रह्मांड के एक अंश हैं और कहीं ना कहीं प्रकृति से जब व्यक्ति दूर होता है तो कुछ चीज़ों में घिरता है. आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन बिकॉज यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बहुत ही आप लोग काफ़ी अनुभवी लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब इस तरह की बीमारी से अगर जूझ रहा है इंसान तो वो अपनी हिम्मत ना हारे, वो कुछ ना कुछ करते हुए लास्ट मोमेंट तक लड़ने की कोशिश करे. This comes as a huge surprise
And all the motivation, all the urja that I get into this webinar is just amazing. And 4 पंक्तियां आप सभी को, सभी श्रेष्ठ जनों को जरूर समर्पित करना चाहूंगी कि किसी का चेहरा लाजवाब होता है, किसी का चेहरा दिल निसार होता है, किसी की हंसी लाजवाब होती है, याद रखती है दुनिया उसे, याद रखती है दुनिया उसे जिसकी जुनूनियत शाहनवाज होती है। आप सभी के जज्बे को मेरा सलाम, and I would like to extend my thanks and heartfelt gratitude to Motherhood Club and Oncology Forum for having me on board and giving me this divine privilege to give a voice to those who fought the battle of life, of mind and body, and look life into the eyes and smile. Yeah, you can hear me? Yes, please. Okay, so my poem is Hope for Cancer. So as the name says, C stands for chemo, A for alternate therapy, N for naturopathy, C for care, E for efforts, and R for results. Just as the name says it all, believe, aspire, and achieve. From the moment cancer comes in life and creates that strife, why me? Be an example of inspiration, driven by a mission. Run stronger, be a true warrior. There's nothing to fear. Technology and alternate therapy is here. There's much more to life than passing out tears. Trust in the body to heal the tear and the wear. Do not despair, hair fall. Instead, make the spirits grow tall. Let not the heat of chemo burn your soul. Let not the light of laser burn your joyfulness. Let not deep body changes shatter your hopes to live. Let not the stillness of the night silence your will. In the house, it's just an awesome day to read my poem for the cancer patients around the world. And I hope that my poem will give them a hope to live on and fight with their cancer. So the title of my poem is entitled, "Oh Cancer, Oh Cancer." The world is never what it seems, full of happiness with its glory. Overshadowed with sadness or pain, we hear the cries. Yet we see the happiness in their eyes. For hope is never forgotten in their hearts. A painful journey they walk, but never bowing to its pain. A head held high, the screams, sentenced by strength and courage. A walk on the path of pain, but on a never-ending road of love. Oh cancer, oh cancer, thou art it engulfs thee, but never endangers thee. You walk with me, you dance with me, but you can never take my soul. My soul of strength, cancer that knows no bounds, but walk in the shadow of pain. Triumph, he shall live with pain and be glory on high. My poem is Hope. Secret is its nature. Demonism are its ways. Devouring your soul is the intention. Such are its ways. Pushes you towards disbelief. Loves the darkness around its aura. Wishes to keep you forever. Bunch of negatives and pain in plethora. Entrapped, engulfed, you may feel. Forget you should never. You are God's child, O loved one. Trust in his blessings forever. Fight with your might and keep your spirits high. Like the sun, you shall rise, riding on the victory high. See that smile which shines upon you. Accept the shower of love. Take the strength of blessings, and hope shall be your best dove. Thank you. आज बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ हैं और
उन्हीं के सामने थोड़ा सा मेडिकल वे में बोलने की कोशिश कर रही हूँ, और वो क्या चाहते हैं अपने पेशेंट से वो है, ऐसी भी कुछ गांठें होती हैं, ऐसी भी कुछ गांठें होती हैं जो चुपके से बन जाती हैं, बिना दर्द के हौले हौले, बिना दर्द के हौले हौले आकार अपना बढ़ा लेती हैं। त्वचा, मुख, जोड़ हड्डियां, श्वसन तंत्र या हार्मोन ग्रंथियां, रक्त तंत्रिका, जननांग या पेशियां, स्तन, लीवर, फेफड़े, गला, आंतड़ियां, खून और लिम्फ के सहारे इन गांठों ने स्वस्थ अंगों पर आक्रमण कर दिया। तोड़ती है शरीर और मन धीरे धीरे, तोड़ती है शरीर और मन धीरे धीरे, मृत्यु भी बढ़ाती है पांव पसारे, मृत्यु भी बढ़ाती है पांव पसारे। कैंसर नाम की इन गांठों से हरगिज मनुष्य को डरना नहीं है, कैंसर नाम की इन गांठों से हरगिज मनुष्य को डरना नहीं है, साहस को रखना है साथ, डर को मन में भरना नहीं है। कैंसर रोग कतई नहीं है आत्मबल से बड़ा, कैंसर रोग कतई नहीं है आत्मबल से बड़ा, मृत्यु को हराकर जिया वही है जो साहस से लड़ा। इंसान की इंसानियत को विज्ञान का बल मिला, इंसान की इंसानियत को विज्ञान का बल मिला, कर्क रोग को हराने को अब नया इलाज मिला। मेरी कविता का शीर्षक है मन की आशा। कभी होती थी वो खुशियों की धूप, आपको आवाज आ रही है जी? कभी होती थी वो खुशियों की धूप, कभी होती थी वो खुशियों की धूप, कलियां खिलके बन गई जैसे भावों की फूल, मस्त चंचल और सुंदर स्वरूप, जिंदगी ने उसके पल पल बदले रूप। नासूर बन के आई, नासूर बन के आई, जीवन में उसके स्तन यानी छाती के कैंसर की बीमारी, नासूर बन के आई, जीवन में उसके स्तन कैंसर की बीमारी। बात है कुछ 3 दशक पुरानी, बात है कुछ 3 दशक पुरानी, निराशा से जकड़ी कांति विहीन हो चुकी थी जवानी, निराशा से जकड़ी कांति विहीन हो चुकी थी जवानी। नाम था उसका किरण वासवानी। अंधियारों के कोनों से तलाशती थी रवानी, अंधियारों के कोनों से तलाशती थी रवानी। काट दी थी उसकी एक छाती, जैसे तुंद लहरों के बीच लटकती कश्ती, काट दी थी उसकी एक छाती, जैसे तुंद लहरों के बीच लटकती कश्ती। ढेरों उम्मीद और ना उम्मीद के बीच फफकती थी सांसें, ढेरों उम्मीद और ना उम्मीद के बीच फफकती थी सांसें। कीमो और दवाइयों को झेलती जैसे किसी अपने ने दी हो दर्द भरी यादें, कीमो और दवाइयों को झेलती जैसे किसी अपने ने दी हो दर्द भरी यादें। भीतर की आवाज और अपनों का साथ, भीतर की आवाज और अपनों का साथ से बढ़ रहा था आत्मविश्वास, भीतर की आवाज और अपनों के साथ से बढ़ रहा था आत्मविश्वास। बदल रही थी जीवन की परिभाषा, बदल रही थी जीवन की परिभाषा, शने शने कम हो रही थी हताशा। और वक्त देख रहा था, और वक्त देख रहा था तमाशा, और वक्त देख रहा था तमाशा। डॉक्टर के अथक प्रयासों से, डॉक्टर्स के अथक प्रयासों से जीत गई हो जैसे मन की आशा, डॉक्टर के अथक प्रयासों से जीत गई हो जैसे मन की आशा। भोर की पहली किरणों ने मन की खिड़की खोल जैसे जाफरंगी रंग हो बिखेरा, भोर की पहली किरणों ने मन की खिड़की खोल जैसे जाफरंगी रंग हो बिखेरा। नया सवेरा नई उम्मीद से जिंदगी का हर पन्ना होने लगा सुनहरा, भोर की पहली किरणों ने मन की खिड़की खोल जैसे जाफरंगी रंग हो बिखेरा। नया सवेरा नई उम्मीद से जिंदगी का हर पन्ना होने लगा सुनहरा, होने लगा सुनहरा। थैंक यू। पंखों में
सिर्फ जान होती है, उड़ान तो उम्मीद में होती है। वो गिलहरी देखो, वो गिलहरी देखो, कहाँ बीते कल पे रोती है। वो निरंतर आने वाले पल की तैयारी में होती है। सोच में भी उम्मीद का होना बड़ा लाजमी है। सोच में भी उम्मीद का होना बड़ा लाजमी है। इसी सोच से तो चींटी पर्वत भी हिलाती है, चींटी पर्वत भी हिलाती है। अरे पंखों में तो सिर्फ जान होती है, उड़ान उम्मीद में होती है, उड़ान उम्मीद में होती। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है चैंपियन। मैं इन्हें फाइटर या सर्वाइवर नहीं कहती हूँ, मैं इन्हें चैंपियन ही कहती हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है चैंपियन। सलाम है इनके जज्बे को, गजब है इनकी मुस्कुराहट, हरदम खिली खिली तब भी, जबकि मालूम है दबे पाव कोई जिंदगी में दे गया दस्तक, अनहोनी की है आहट। जबकि मालूम है दबे पांव कोई जिंदगी में दे गया दस्तक, अनहोनी की है आहट। हर पल लड़ते गिरते लड़खड़ाते जीतते, भीषण दर्द में भी खूब खिलखिलाते, पल पल पास आ रहे दुश्मन को चुटकी में हराते, पल पल पास आ रहे दुश्मन को चुटकी में हराते। जानते हैं कि एक ऐसे काकस में जकड़ रहे हैं हम, जानते हैं ऐसे काकस में जकड़ रहे हैं हम, पता नहीं कब साथ छोड़ देगा दम, पता नहीं कब साथ छोड़ देगा दम। पर मजाल है जो मुस्कुराना छोड़ दें, पर मजाल है जो मुस्कुराना छोड़ दें। रोज नई ऊर्जा के साथ उठते, रोज नई ऊर्जा के साथ उठते, जियो और खुलकर जियो का संदेश देते, इसलिए चैंपियन कहलाते। जियो और जीने का संदेश देते, इसलिए चैंपियन कहलाते। सलाम है इनके जज्बे को, ये वो चैंपियन हैं जो आशा की नई किरण जगाते। सलाम है इनके जज्बे को, ये वो चैंपियन हैं जो आशा की नई किरण जगाते। सकारात्मकता से लबरेज, सकारात्मकता से लबरेज, जीते और जीना सिखाते, सकारात्मकता से लबरेज, जीते और जीना सिखाते। धन्यवाद। Thank you, Ekta, for inviting me. First of all, I would like to salute all the cancer warriors and the doctors community. It is a privilege to speak here with the learned poets and all the chief guests and guests of honor. The title of my poem is Freedom. What is freedom? Ask a freedom fighter who willingly sacrifices life for the nation. What is freedom? Ask a prisoner in jail who repent lifelong for doing wrong. And this line I have just now added. What is freedom? Ask a patient in hospital who looks to a physician as God with hope. Freedom is different to different set of people. Keep in mind, freedom comes with a price. Be willing to pay the price and enjoy the freedom. This price is nothing but to be very careful. Real freedom is the freedom of mind. Free your mind with the limiting beliefs. Free your mind with the prejudices. Free your mind with the fear of unknown. आप शुरू कीजिए। मेरी ओके, थैंक यू। मेरी कविता का शीर्षक है उम्मीद। माना सांसें कम है पर मेरी उम्मीदों के हौसले अभी भी बुलंद है। माना सांसें कम है पर मेरी उम्मीदों के हौसले अभी भी बुलंद है। हर रोज खुद को मनाती हूँ, सुबह शाम उम्मीद का दिया जलाती हूँ। हर रोज खुद को मनाती हूँ, सुबह शाम उम्मीद का दिया जलाती हूँ। शरीर हर पल मेरा टूट रहा, दवाइयों का स्वाद कसेला खल रहा। शरीर हर पल मेरा टूट रहा, दवाइयों का स्वाद कसेला खल रहा। फिर भी आत्मविश्वास की एक चुटकी चीनी हर पल फाक लेती हूँ। आत्मविश्वास की एक चुटकी चीनी हर पल फाक लेती हूँ। माना सांसें कम है पर मेरी उम्मीदों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। हर पल मरने का एहसास मैं क्यों करूं? हर पल मरने का एहसास मैं क्यों करूं? जो पल मिले हैं उन्हें हंसते हुए क्यों ना चलूं? जो पल मिले हैं उन्हें हंसते हुए क्यों ना चलूं? जिंदगी में ना कोई विराम है, जिंदगी में ना कोई विराम है। जिंदगी तो बस चलने का नाम है, जिंदगी तो बस चलने का नाम है।
उम्मीदों की मेड़ पर फिर आज मैंने एक नया बीज बोया है। उम्मीदों की मेड़ पर फिर आज मैंने एक नया बीज बोया है और अपनी अंतर्मन की आवाज से उसे सहलाया और नहलाया है। अपनी अंतर्मन की आवाज से उसे सहलाया और नहलाया है। जीना ही होगा मुझे अपनों के लिए, जीना ही होगा मुझे अपनों के लिए और अपनों की आवाज को सुनने के लिए। माना सांसें कम है पर मेरी उम्मीदों के हौसले अभी भी बुलंद है। माना सांसें कम है पर मेरी उम्मीदों के हौसले अभी भी बुलंद है। इन्हीं कविताओं के इस कविता का अंत करती हूँ, है ना। सांसें कम है लेकिन उम्मीद मेरी बुलंद है। बहुत बढ़िया नेहा, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू इंदु। ओके, बहुत ही सुंदर पढ़ा आपने नेहा, दिल को छू गई आपकी कविता। इसके साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ पर, डॉक्टर मुक्तेश शर्मा। ही इज़ अ सर्जन और मैं सर को बहुत सालों से जानती हूँ, 2006 से जानती हूँ और सर से इंस्पायर होती रही हूँ। ही इज़ एमेरिटस सर्जन फ्रॉम मूलचंद हॉस्पिटल एंड आई थिंक 45 इयर्स अपने लाइफ के उन्होंने उस हॉस्पिटल को दिए हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू सर, और आपको हम बहुत बेसब्री से सुनना चाहते हैं सर। अनम्यूट कर लीजिए सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं सर। एकता देखना क्या इशू सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका शायद ऑडियो या तो कनेक्टेड नहीं है या वॉल्यूम में कोई इशू है, क्योंकि वो आप अनम्यूटेड तो हैं। एकता हम सर को सॉर्ट आउट करने देते हैं, तब हाँ तक जी। एक नेक्स्ट पोएट को बुला लेते हैं। जी जी सर हम एक किसी को सुन के फिर आपके पास वापस आते हैं। जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी पल्लवी वछानी को, जो भीलवाड़ा राजस्थान से हैं, एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और काफी सुंदर पोएम्स भी लिखती हैं। तो पल्लवी जी, आपका स्वागत है। पल्लवी। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद एकता जी। कैंसर ये जो शब्द है वो अपने आप में ही थोड़ा सा डरा देता है इंसान को। मेरी आज की जो पोएट्री है वो डेडिकेटेड है 6 years old बच्ची को, जो एक कैंसर फाइटर है। होप, शी लिव्स इन आवर हार्ट। देयर इज ऑलवेज अ होप which lives in my heart. Memories of an angel which will never depart. I met her walking in the cancer ward where she herself is a patient, alas. She shines like a ray in the sunshine bright. She shines like a ray in the sunshine bright. Like a star, she twinkles in the darkest night. She dances to the tunes played far a while. She takes my heart with her magical smile. As I travel through the corridor, I hear her giggles from her room. She makes friends, she laughs aloud. She chirps like a sparrow all around. She loves to live, she is a fighter. She loves to live, she is a fighter. She never loses hope, she is a survivor. Like a nightingale, she wanders. Like a nightingale, she wanders. A bright little star, she ponders. She prays for the ones in pain. She cares for the ones who have no time to spare. Gradually, she herself is becoming pale as she takes chemos in her veins. The dying breaths, life is too short. Cheers to her spirit, she never tears apart. Like a dream, she is a bravo. She would surely live in everyone's heart.
she would surely live in everyone's heart. Thank you. Very nice, Pallavi. Beautiful. In our heart, and what a tribute to a year-old Very fighter. beautiful. Thank you. I'd like to call Richa Dinesh Sharma. Sir, are you ready, sir? Dr. Sir? I think Not he's yet audible. So let him sort out. I think, sir, I would request कि आप एक बार log off करके दोबारा log in करने की कोशिश कीजिए. It might help you solve the problem. I'd like to invite Richa Dinesh Sharma from Singapore, who's an international poet. And Richa, do we have you? Good evening, everyone. Good evening. My poem is dedicated to my father, who has since passed away from Hodgkin's lymphoma. And it is a small peek into the life of cancer patients. It's called Metastatic Love. The morning woke up suddenly, an affliction, a causal cruelty, a hired cab, and a trip to the hospital. The antiseptic smell of reality. No shadows on the floor were cast this way. It was just another warm winter day. And yet fell a darkness unchecked. Standstill life like a bloody train wreck. Soft gasp as the word cancer sinks in. The fever violent is breathing thin. Those drugs intravenously invade. We play along this deathly charade. Every moment of pain was lived true. The platelets diminished, but hopes and grit grew. At long last, you have fought hard enough. Harder to remove this cruel metastatic love. You did not lose not a single time. With blood and tears, you drew the battle lines. Survived or died, but still a legacy of hope. A celebration of life, not to mourn or mope. Thank you. Very nice. Very nice. Very touching. Very nice, Richa. Very touching. Very touching, Richa. Very touching. That's a Thank tribute you. to your father, and may his soul rest in peace. And we understand the pain that a cancer patient goes through, but there is always hope. And that is what is the most important thing that we need to spread today for every cancer sufferer, patient, or the caretaker. More power to you, Richa. More power to you. Yeah. I'm going to invite Praveen from Hyderabad, who's an IT professional and an author, where she has penned down the parenting journey. So Praveen, welcome. Let's hear you. Thank you so much, Ekta ji and Motherhood Club. I'm really so thankful, and especially जो supporters की बात हो रही है. I know of some relative who supported her mom all through, and then she was so depressed that she committed suicide. So that is the reason why I have penned down this, where it's एक छोटी सी गुफ्तगू कैंसर के साथ. आ गए कब तुम एक बिन बुलाए मेहमान की तरह, क्या लगा तुम्हें सजदा करूंगी एक गुलाम की तरह, जिनसे मोहब्बत बेशुमार थी ये लंबे बाल झड़ रहे हैं मेरे, एक ही झटके में जैसे कदम थक कर डगमगा रहे हैं मेरे. जानती हूँ शारीरिक रूप से कमजोर सी हूँ थोड़ी अब मैं, दिल के गहराइयों में खामोश सी हो चुकी हूँ अब मैं.
पर परिवार और अपनों का प्रेम फौलाद सा खड़ा है मेरे। तो बताओ तो जरा कैसे पूरे होंगे ये अनुचित अरमान तेरे। मोहब्बत के मौसम में आंसू के बरसात की क्या है जगह। जब जज्बा हो चमकते हुए सूरज के आशा किरणों की तरह। हिम्मत के जख्म में सांसों के टूटने की न है कोई वजह। जब अजूबा हो हौसला खिलते हुए चांद की सुंदरता की तरह। जानती न थी इतनी ताकत मेरे अंदर कब से है भरी हुई। तुमने आकर दिखा दिया किस मिट्टी की हूं मैं बनी हुई। तैयारी भरपूर है अब जिंदगी के नए अध्याय को स्वागत करने की। सांस से अंतिम सांस तक खड़े होकर खुशी से तुम्हारा सामना करने की। इरादा पर्वत चट्टान की तरह शांत परंतु मजबूत खड़ा है मेरा। आशान्वित और पुनर्जन्म महसूस कर रहा है अब रूह ये मेरा। दिल के साथ चलूंगी दर्द को गुलाम रखूंगी। गरजते शहंशाह की तरह गिरूंगी संभलूंगी लड़ूंगी लेकिन खिलूंगी जरूर एक प्यारे गुलाब की तरह। आ गए कब तुम एक बिन बुलाए मेहमान की तरह। क्या लगा तुम्हें सजदा करूंगी एक गुलाम की तरह। धन्यवाद। वाह, क्या कह दिया आपने। टू गुड प्रवीण। क्या कह दिया, दिल छू गई बिल्कुल। Beautiful. We will not be a victim at all to this deadly disease. Beautiful message, Praveen. Thank you so much. खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लाइंस, दिल छू लिया। अब इतनी खूबसूरत कविता, दिल को छूने वाली कविता के बाद अब हम रश्मि जी के पास चलेंगे, जो बहुत ही सुंदर लिखती हैं, बहुत कोमल दिल है उनका, बहुत ही प्यारी हैं हमारी रश्मि सांगानेरिया। रश्मि जी नमस्ते। इनकी आवाज इतनी प्यारी बच्चों जैसी है कि लगता है हम बच्चों से बात कर रहे हैं। ये जयपुर से हैं, पोएट हैं, राइटर हैं एंड शी इज एन एक्स ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट। आप समझ में आता है आपको क्यों लिया गया था ऑल इंडिया रेडियो में। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। आपने मुझे बच्चा कहा, आप समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। ठीक है, ओके। कैंसर को मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है कि कैंसर का जब भी नाम आता है, केकड़ा एक बना हुआ हमेशा यूं आ जाता है नजरों के सामने। तो केकड़ा, इसको मैंने ऐसे किया है, केक है अड़ा, केकड़ा, केक अर्थात जीवन की होप, जो है उम्मीद की रोप मीन्स रस्सी। जीवन की होप, उम्मीद की रोप, हो गहरा कुआं कितना, खाली बर्तन मीन्स निराशा, खाली बर्तन से बांध, घिर्री पर घूम घूम, उतर गहराई में डुबका डुबका, करती मदद अंगड़ाई में, पकड़ उसके गांठ की, रस्साकशी में गांठ से गांठ की, केकड़े के दो पंजों और पैर 8 की, घायल रस्सी बचाए रखती सूत, धोखे और विश्वास के 60 काट की, थामता यह सूत होने से मन को बुत, थामता यह सूत होने से मन को बुत, बांधे रखता आस अगले जन्म गांठ की, मोमबत्तियों की लौ संग साहस का केक, मोमबत्तियों की लौ संग साहस का केक, जब आई बॉल्स में हो जाए अड़कर खड़ा, फिर किसी केकड़े का डर नहीं रह सकता अड़ा। अर्थात डर अविश्वास को हरा, को हरा, ईद मीन्स पहचान और आशा, को हरा ईद को बनाए रखने में,
डटा रहता है उम्मीद का कड़ा, केकड़े की इस कश्मकश में उम्मीद का केक हमेशा रहता है अड़ा। थैंक यू। वाओ, उम्मीद का केक खड़ा रहता है, केक खड़ा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम सुनने वाले हैं उनको, लेकिन उससे पहले मैं एक बार सर से चेक कर लेती हूँ। डॉक्टर मुक्तेश जी, आप रेडी हैं? अच्छा, आप ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। तो अब हम उनको सुनेंगे जिन्होंने शुरू से हमारा साथ दिया है इस पूरे इवेंट को एक शेप देने के लिए, जो कि है डॉक्टर इंदु बंसल, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डायरेक्टर एट नारायणा हॉस्पिटल। और जैसा सुशील जी ने कहा था कि जब इनको मिले थे, स्माइल देख के ही वो उन्हें लगा था कि जब पेशेंट इन्हें देखेगा तो वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। एंड वाकई में मैं इंदु के लिए यही कहना चाहूंगी कि डॉक्टर तो वो बहुत अच्छी हैं, बट एज अ ह्यूमन बीइंग शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। सो इंदु, आपके ही शो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द नाइस वर्ड्स। मैं टाइम नहीं लूंगी, मैं सीधा अपनी कविता पे आती हूँ। सो ये मैंने एक पेशेंट के पर्सपेक्टिव से लिखी है कि ये इनफैक्ट होप देने के लिए है कि मेरी कविता का शीर्षक है इन रास्तों को रेशमी बनाना है मुझे, इन रास्तों को रेशमी बनाना है मुझे। कैंसर, जी हाँ, कैंसर, जी हाँ, ये वही शब्द है जिसने 20 साल पहले मेरी जिंदगी में तूफान मचाया था। यह वही शब्द है जिसने 20 साल पहले मेरी जिंदगी में तूफान मचाया था। सुन्न हो गई थी मैं, थरथरा गई थी, रूह अंदर तक कांप गई थी, पैरों तले धरती मेरी हिल गई थी, वाकई में बेइंतहा डर गई थी। मौत मेरी खुली आंखों के सामने मेरी चौखट पर थी, मौत मेरी खुली आंखों के सामने मेरी चौखट पर थी, और मेरा साया भी जल्द मुझसे गुमशुदा होने चला था। मेरा चैन और मेरी नींद मुझसे बेहद खफा और उदास थी। सर के नीचे भविष्य के सवाल रात की चादर ओढ़े सोते थे। दिल के अरमान किसी रद्दी अखबार की तरह बेमानी हो गए थे। तन्हाई की महक, आदमी अकेला हो जाता है, तन्हाई की महक तिनके से सहारे की कस्तूरी ढूंढ रही थी। जिंदगी मानो लट्टू सी घूम फुटपाथ से भी नीचे उतर रही थी। मेरा घुमक्कड़ मन गम की गठरी उठा बेजुबान राहों पर था। फिर भी मेरे अंदर बिखरी जिंदगी को संवारने की जिद थी। जिस्म बीमार था लेकिन मन को तंदुरुस्त होने की चाह थी। मैं जिंदगी के कठिन प्रश्न पत्र को खुद सुलझाना चाहती थी। जिंदगी और मौत के फासलों के पन्नों में, जिंदगी और मौत के फासलों के पन्नों में जीत की नई कहानी लिखना चाहती थी। मैं अपने दर्द की खुद मरहम बनना चाहती थी, इसलिए अपनी हर बेबसी को चांदनी बनाने में लग गई थी और हिम्मत जुटा पूरे मन से अपने इलाज में जुट गई थी। मेरे हौसले के तरकश के आगे आसमां भी अब हार रहा था। जंग जीत ली थी मैंने, जंग जीत ली थी मैंने, और अब देखो ना मुझे 20 साल बाद, जस्ट टू से कि पीपल लिव लॉन्गर, अब देखो ना मुझे 20 साल बाद पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ। घने काले घुंघराले रेशमी बाल है मेरे, और आंखों में एक नए आत्मविश्वास की चमक, कुछ भी सह लेने की, पा लेने की, जीत लेने की, हासिल कर लेने की। क्योंकि अब डरती नहीं हूं मैं, क्योंकि अब डरती नहीं हूं मैं किसी भी चक्रवात से, किसी भी झंझावात से। ना अब मैं किसी से कुछ मांगती हूँ, ना अब मैं किसी से कुछ मांगती हूँ। बिन मांगे सलाह या दया का भाव तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं देती हूँ और मरीजों को ठीक होने की एक नई उम्मीद, एक नई राह, एक नई चमक, एक नया हौसला, सही समय पर सही इलाज करने की सही सलाह। उनकी आंखों के दरिया को अपनी झोली में समा भी लेती हूँ। विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी तरह कैंसर का मरीज भी ठीक रहता है, बिल्कुल मेरी तरह सालों साल। मैं उन्हें उनके सपनों से रूबरू कराती हूँ। उनकी गम की हर शाम को जुगनू सा चमकाती हूँ, उनकी गम की हर शाम को जुगनू सा चमकाती हूँ। जी हाँ, उनकी गम की हर शाम को जुगनू सा चमकाती हूँ। क्या बात। थैंक यू।
Mind blowing. Too good. Too good. Hats off. Hats off. Hats off. Really, so inspiring. So inspiring. Such a beautiful imagery. Really nice. Dr. Indu, I would like to say something. You know, you have wonderfully compiled the patient's view as well as what you feel, you know, your positivity into it. It's so beautiful. Thank you so much. Absolutely. Wonderful poetry. Thank you so much, ma'am. Every doctor is like her. Yes. Not a doctor, but a human. Absolutely. And understands the perspective of the patient. Yes. I think सब लोग ठीक हो जाएंगे और उम्मीद जो है वो भर भर के बहुत बड़ी चीज है होगी. Absolutely. बहुत बढ़िया. हाँ जी डॉक्टर सर, आप रेडी हैं? Can you hear me? Yes sir, we can hear you. Okay. जी इंदु आप प्लीज इंट्रोड्यूस करेंगी सर को एक बार. So welcome back Dr. Muktesh. Dr. Muktesh हमारे बहुत ही सीनियर सर्जन है. इज एमेरिटस सर्जन फ्रॉम मूलचंद हॉस्पिटल एंड मैं सर को और मैम को पहले जानती हूँ. शी इज एनेस्थेटिस्ट और वो मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स पे बुक्स लिखती हैं. सर को मैं 2006 से जानती हूँ और सर का जो जज्बा है लाइफ के प्रति वो हम खुद उनके शब्दों से सुनेंगे अभी. वेलकम सर. थैंक यू. नमस्कार. मेरी कविता का शीर्षक है क्यों उदास बैठे हो. क्यों उदास बैठे हो, देखो वो उज्जवल भविष्य बाहें पसारे तुम्हारा आलिंगन करने को कितना आतुर खड़ा है. ये जिंदगी की सुबह है, शाम नहीं. और यदि भूल से तुम इसे शाम समझ ही बैठे हो तो भी उठो, दीप प्रज्वलित करो, मधुर संगीत की लय छेड़ो. दूर होगा अंधेरा, झांकृत होगा नवजीवन, आशा के दीप जलेंगे, उदासी दूर भागेगी. उठो, क्यों उदास बैठे हो. देखो उन पेड़ों को जो गर्मी में गर्म हवाओं के थपेड़े सहते रहे, झुलसते रहे बरखा के इंतजार में. बरखा आई, बहार लाई, हर तरफ चहक महक. ये गर्मी से बरसात, हर तरफ चहक महक, जीवन ही जीवन. ये गर्मी से बरसात का सफर कठिन तो था पर असंभव नहीं. सिर्फ विश्वास के साथ चलना था. तुम भी चलो, उदास मत बैठो, देखो वो उज्जवल भविष्य. धन्यवाद. शाम भी है कभी सुबह है. एक्सीलेंट. बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब. एकदम आसान शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में अपनी बात कह गए. बहुत बड़ी बात कह गए. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नाइस. इंदु आप अगला किसे बुला रही हैं? आप बुलाओ, मैं एक बार लिस्ट देखती हूँ. एक मिनट. पंकज जी. या सो अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर पंकज मिश्रा जी को. ये नारायणा हॉस्पिटल में हैं. बहुत ही उम्दा लिखते हैं एंड इज एन एक्सीलेंट पर्सन. मार्केटिंग टीम में है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, इससे पहले NH रायपुर में थे और हम लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं. पंकज जी, हम बेचैन हैं आपकी कविता सुनने के लिए. Good evening, ma'am, and good evening to all the organizers. It's a very nice initiative. मेरा कविता का शीर्षक है दीवार स्वप्न. पंकज जी, आपकी आवाज थोड़ी वाइब्रेशन आ रहा है, एक बार. बोलिए. मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी. मेरी कविता का शीर्षक है दीवार. खिलखिलाता सा सब कुछ, नीला आसमान, चहकते पंछी, कोयल की मधुर आवाज, पगडंडियों पर खेलते बच्चे. आवाज क्लियर नहीं है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है. एक मिनट. इज इट क्लियर नाउ? बोलिए. मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी. खिलखिलाता सा सब कुछ, नीला आसमान, चहकते पंछी, कोयल की मधुर आवाज, पगडंडियों पर खेलते बच्चे. ऐसा होने लगा था. मर्ज गंभीर ही था, गौर जरा देर से किया. गुजर गया सब कुछ, धड़कनें बढ़ सी गई. सबके साथ खड़े होकर भी
को अकेला महसूस करता था। उजाले में बैठकर अंधेरा, मन में हमेशा वक्त मंडरा रहा था। उन उजालों की तलाश, उस महक की प्यास, एहसास और एक ही सफर था। एक रोशनी दिखी, मंजर तो दर्द भरा था, दोस्ती गहरी होती। गुजरते वक्त में महसूस करने लगा, शायद दर्द ने किनारा कर लिया। एक महक सी, एक डरावने सपने से बाहर निकल लगी थी। मेरे से उठने में किसी शख्स ने चिराग थाम कर मेरा गुलशन संवार दिया। धन्यवाद। थैंक यू। गुलशन संवार दिया, बहुत बढ़िया पंकज जी, थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगी नीरू सहगल को, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है और WBTR की फाउंडर है। नीरू जी, आप हैं हमारे साथ? हेलो, यस आई एम देयर। ओके, प्लीज आप अपनी कविता सुनाएं। नीरू, आप हैं? प्लीज, वी आर वेटिंग फॉर योर पोएम। हाँ जी, जस्ट अ सेकंड। A very good evening to all the wonderful ladies and the handsome men over here. बहुत ही अच्छा सेशन है, मदरहुड क्लब का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, and I'm going to present my poem on cancer and the theme is hope. उम्मीद हूं मैं कैंसर जैसी बीमारी के डर से टूटने वाली नहीं, क्योंकि उम्मीद हूं मैं। ए कैंसर, जानती हूं तू मुझे तोड़ने आया है। ए कैंसर, जानती हूं तू मुझे तोड़ने आया है, पर मैं टूट कर भी खुद को फिर से जोड़ लूंगी, क्योंकि उम्मीद हूं मैं, क्योंकि उम्मीद हूं मैं। ए कैंसर, जानती हूं मैं तू मुझे दर्द देने आया है, पर मैं उस दर्द से भी जिंदगी जीने की कला सीख लूंगी, क्योंकि उम्मीद हूं मैं, उम्मीद हूं मैं। ए कैंसर, तू मेरे शरीर को खत्म कर सकता है। ए कैंसर, तू मेरे शरीर को खत्म कर सकता है, पर मेरी आत्मा को नहीं। उस आत्मा को अमर कर सकने वाली उम्मीद हूं मैं। ए कैंसर, तू मुझसे मेरी जिंदगी छीन सकता है। ए कैंसर, तू मुझसे मेरी जिंदगी छीन सकता है, पर मेरा जोश, जुनून, जज्बा नहीं, क्योंकि उम्मीद हूं मैं, क्योंकि उम्मीद हूं मैं। ए कैंसर, तू हार जाएगा एक दिन, और मेरी उम्मीद जीत जाएगी उस दिन। तू मुझे मिट्टी में मिला देगा एक दिन, तू जीत कर भी हार जाएगा उस दिन, और मैं हार कर भी जीत जाऊंगी उस दिन, क्योंकि उम्मीद हूं मैं, उम्मीद हूं मैं। मैंने हारना नहीं सीखा, मैंने हारना नहीं सीखा, क्योंकि उम्मीद हूं मैं। मैंने हारना नहीं सीखा, क्योंकि उम्मीद हूं मैं। धन्यवाद। बहुत बहुत ही प्यारा बोला आपने, उम्मीद हूं मैं। आई थिंक इसी वर्ड पे हमारी पूरा कैंसर ट्रीटमेंट इसी के वर्ड के अराउंड रिवॉल्व करता है। थैंक यू सो मच। और अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर रोशनी सिंह, दिल्ली से हैं, मेरे साथ ही मेरे डिपार्टमेंट में हैं। शी इज माय राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, मैं क्या बोलूं, मतलब सब कुछ संभालती हैं। तो छोटा सा बेबी है इनका, वो रो रहा है बेबी। सो आई एम रोशनी, यस मैम, हम आपको सुनना चाहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। पोएम मेरी ये इंस्पायर्ड है मेरे पेशेंट से, कि जब जब मैं लाइफ में लो फील करती हूँ, हाउ आई गेट इंस्पायर्ड बाय माय पेशेंट्स। जब उम्मीद खोने लगती हूँ मैं, जब उम्मीद खोने लगती हूँ मैं, जब अपने मन में ही रोने लगती हूँ मैं, जब लगता है कब कुछ अच्छा होगा, तब आप सबको याद करती हूँ मैं, तब आप सबको याद करती हूँ मैं। याद करती हूँ आपकी निडर उम्मीदों को, याद करती हूँ आपकी डरी हुई आंखों और उसको मात देती होठों की मुस्कुराहटों को, याद करती हूँ आपके डटे हुए जज्बातों को। आपकी आशाओं भरी बातें हमें आत्मविश्वास देती हैं, आपके साहसी शब्द हमें उम्मीद देते हैं, आपके जीने की चाह हमें जज्बा देती है, आपके लड़ने का हौसला हमें ताकत देती है।
पता है हमें कि आपकी दुनिया में तूफान सा आया है, पता है हमें कि आपके भविष्य का रास्ता डगमगाया है, पता है हमें कि आपका दिल रोज़ थोड़ा और मांगता है ज़िंदगी से, पता है हमें कि अब पहले जैसा कुछ ना रह पाया है। मालूम है हमें उस अंधेरे के बाद की रोशनी की चाहत, मालूम है हमें कि आपकी आंखें ढूंढती हैं वो राहत, मालूम है हमें कि आपके मन को सुनना है वो जादुई शब्द कि आप जीत चुके हैं ये जंग और आप आज़ाद हैं अब। देखा है हमने उन अकेले लोगों को जिनके साथ कोई ना आ पाता जब होती है ज़रूरत सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये जंग है मुश्किल, अकेले नहीं लड़ा जाता। आप हैं खुशनसीब कि आपके अपने आपके साथ हैं, आपसे ज़्यादा उन्हें हर बातें याद हैं। हम सलाम करते हैं उनको जो आपका ध्यान रखते हैं, जो अपने आराम को छोड़ आपके लिए जगते हैं, हर वक्त हर पल आपके लिए भगवान से दुआ मांगते हैं, आपको हंसाते हुए अपने आंसुओं को छुपाते हैं, अपने काम को छोड़ हर दिन आपके लिए आते हैं। उन्हें होता है सबसे ज़्यादा पता, लेकिन वाह क्या हौसला दिखाते हैं। कितना कुछ सीखा है आपसे, कितना कुछ सीखना अभी भी बचा है, कितना कुछ सहा है आपने, कितना कुछ कम हमने दिया है। यही सब देख सोचती हूँ मैं कि क्यों बिना मतलब अपनी किस्मत को कोसती हूँ मैं। भगवान ना दिखाए ये दिन जो लोगों को तोड़ देता है, बस किसी को कोई दर्द ना हो, कोई गम ना हो, यही मनाती हूँ मैं। आप सबको देख हौसला रखती हूँ मैं, जब उम्मीद खोने लगती हूँ मैं, जब उम्मीद खोने लगती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सुंदर रोशनी, Thank you, so touching, so beautiful, so beautiful. तुम रोशनी ही हो पेशेंट्स की लाइफ में। Thank you, ma'am. Dr. Roshni, hats off to you. Thank you so You much. were brilliant. Thank So you. doctors like you redeem our faith in them, and that's where the hope sustains. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much. इनके बाद मैं एक और डॉक्टर को बुला रही हूँ, डॉक्टर सुबूही रिजवी। शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, बहुत एडोलेसेंट वर्कशॉप्स करती हैं, गुड़गांव में है। मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी जान है, मेरी हर मतलब राइट हैंड है। कुछ भी होता है मैं सबसे पहले इनको कॉल करती हूँ, और बहुत सोशल प्रोग्राम्स भी करती हैं, एंड शी इज़ माय इंस्पिरेशन। सुबूही, Thank you for your kind words. And actually it's like listening to all these good people, I have been savoring every moment. And this poem is dedicated to a young girl who had her mastectomy and because her cancer was diagnosed late. So, and I know she was under your treatment also, Dr. Indu. So for her it is कि तुम वीर हो, तुम वीर हो इसलिए तुमको चुना है, ये दर्द तुमको यूं ही नहीं मिला है। तुमको लगता होगा बहुत आसान है कहना मुझको, क्योंकि शायद तुम्हारे दर्द का मुझको नहीं पता है। सच पूछो तो जानती हूं तुम्हारे हर दर्द को, ख्वाब को, अरमान को, जज्बात को, क्योंकि पढ़ लेती हूं मैं इन आंखों को, मुस्कुराते हुए भी कितना कुछ कह देती हैं ये। बोलती हैं ये कि मुझे तो अभी बेफिक्र जीना है, अपने माँ बाप के ढेर सारे सपने भी सजोना है। बोलती हैं ये कि मुझे तो पसंद का अपने कोर्स भी पूरा करना है, और मुझे अपने सपनों के राजकुमार से भी तो मिलना है। कहती हैं ये कि मैंने गलत तो कुछ भी नहीं किया, फिर प्रकृति ने ये सजा मुझको क्यों दिया। भूल कर भी मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर क्यों मैंने ये सजा पाया। तुम वीर हो इसलिए तुमको चुना है, ये दर्द तुमको यूं ही नहीं मिला है। सख्त है मगर नामुमकिन तो नहीं, सख्त है मगर नामुमकिन तो नहीं। तुम्हारा डगर मुश्किल है मगर मंजिल दूर नहीं। हौसला रखो और जिंदगी को उसी शिद्दत के से जियो, इस दर्द को अपने आप में यूं मत खो दो। बिखेर दो सारे रंग अपनी कला कर्म से, रोज उभरो इंद्रधनुष की प्रतिभा बनके। जान लो तन अगर कमजोर हो भी जाता है, मन का विश्वास सारी नैया पार कराता है। बस इसी विश्वास के साथ तुमको आगे बढ़ना है, अपनी पूरी मानसिक शक्ति के साथ तुमको लड़ना है। तुम वीर हो इसलिए तुमको चुना है, ये दर्द तुमको यूं ही नहीं मिला। थैंक यू। तुम भी मेरी दोस्त बहुत वीर हो। So this is how, I mean, this is her love for the patient and Zeni. मेरा salute है to that girl. She's very young, and the way she's handling
the disease. I mean, I can understand why she's in so much pain. This is what happens to us when we come across patients like her. Lots of love and hugs to you, dear friend. And Dr. Subohi, अगर आपकी जैसी इतनी प्यारी गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन होंगी तो जो बच्चा भी बाहर आता है ना वो भी बहुत खुश हो जाता है. तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. You give life and hope to many, and stay strong, and we can understand the emotions of the doctors. है तो वो भी एक इंसान. Beautifully penned, and what a tribute. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. अब मैं बुलाना चाहूंगी शारदा अय्यर को. शारदा इस वक्त झारखंड में बेस्ड है. शी इज एन आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, अ मल्टी टैलेंटेड लेडी. शी इज अ होम मेकर, बट शी इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट, अ वायलिनिस्ट. गुनगुनाती भी हैं और बहुत कुछ करती हैं. तो आज देखते हैं शारदा हमें क्या सुनाना चाहती है. शारदा, वार्म वेलकम. Thank you, dear Ekta and Dr. Indu Bansal, and to everyone here. I would like to dedicate this poem to my very important, friends in my life. And two of them actually survived from cancer, and one very recently, especially an army officer, he had given up his life. He actually fought very bravely for some years. And I'd like to dedicate these lines to them and to all the doctors and the patients who have been really, having faith and working towards the goal. Walk through life with hope. Down the memory lane, we had all the best of times of our life. Life doesn't end with old memories, but more memories to follow. The moments that are unforgettable, lovable, cherished, fun-loving, and most of all, filled with joy and happiness. The journey of our life doesn't wind up with this. As we walk towards the future, it unwinds to welcome with new beginnings. We haven't just created an aura with our presence, also leaving a divine identity in our absence. Let our happy days create a history in all of us to remember forever. Let our coming days be welcomed with more sparkling miracle happenings of our life. Let us be thankful at this moment and always, as we are blessed to born as a human being. Let us make our lives as painless as possible, both physically and mentally, by not letting lumps and bumps to play hide and seek in our bodies, and be blessed with the grace of Almighty to walk through life with hope, to live a long, hale and hearty life with more and more merrier memory lanes. Thank you so much. Wow. Wow. So beautiful. So beautiful, Sharda. Beautiful. Beautiful. Each of us has something or the other to dedicate and, bring hope and happiness in the lives of many. तो इंदु, अब आप किसको बुला रही हैं? आज सबसे प्यारी बात यह है कि हर कोई एक अलग अलग पहलू को छू रहा है अपनी कविता के थ्रू. Although it's on hope for cancer patients, but everyone is touching a different aspect. That makes this poetry session a unique session. With this, I would like to invite our own Suraksha Pruthi Khurana ji. She is from Gurgaon. She is an educationist, writer, and a poet, and she writes beautifully. So I hope all of us will get a lot of inspiration from her. Yes, Thank you so much, Indu ji. सबको मेरा नमस्ते, नमस्कार, आभार, अभिनंदन. मेरी कविता का शीर्षक है उम्मीद. मैंने भी 2 महीना पहले अपनी भाभी को खोया है कैंसर से. मेरे ही जितनी उम्र की थी. तो मैं ये कविता उनको डेडिकेट करूंगी. मेरी कविता का शीर्षक है उम्मीद. कैंसर. कैंसर शब्द से डर जाना क्यों? कैंसर शब्द से डर जाना क्यों? घबराना क्यों? थोड़ी सतर्कता, थोड़ी सावधानी करेगा कैंसर को बेमानी. थोड़ी सतर्कता, थोड़ी सावधानी करेगा कैंसर को बेमानी. माना विपदा की घड़ी है, दर्द बहुत असहनीय है. माना विपदा की घड़ी है, दर्द बहुत असहनीय है. वेदनाएं दर पर खड़ी हैं. चुनौतियां हैं बहुत, चुनौतियां हैं बहुत. टेढ़ी मेढ़ी है जीवन की डगर. चलो बढ़ाएं प्रयास चरण,
चलो बढ़ाएं प्रयास चरण, रखें जीवित उम्मीद की किरण। दिए की लौ सा बढ़ना होगा, दिए की लौ सा बढ़ना होगा, रख मजबूत कदम, जीवन लक्ष्य पाना होगा। उम्मीद की नाव को खे, उम्मीद की नाव को खे, सागर की लहरों से टकराना होगा। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास और मुस्कुराहट, जीने की नई चाह बनेगी तुम्हारी ताकत। आत्मविश्वास और मुस्कुराहट, जीने की नई चाह बनेगी तुम्हारी ताकत। नियमित जांच, डॉक्टरों पर भरोसा, उन्नत मेडिकल साइंस पर अटूट विश्वास। मेरी बेटी भी डॉक्टर है, मैं डॉक्टर की माँ हूँ, उसको एनेस्थीसिस्ट है, वो आईसीयू में बहुत उसकी ड्यूटी होती है। वो भी मेरे को कभी कभी बहुत इमोशनल होके बातें सुनाती है। तो मैं इंदु जी और जो और डॉक्टर्स यहाँ पे सब जुड़े हुए हैं, सबकी भावनाओं को बखूबी समझती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत सारी बातें सुनती हूँ। नियमित जांच, डॉक्टरों पर भरोसा, उन्नत मेडिकल साइंस पर अटूट विश्वास, करो आशाओं का वरण, रखें जीवित उम्मीद की किरण, रखें जीवित उम्मीद की किरण। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत प्रेरणादायक सुरक्षा जी, वेरी नाइस। बहुत खूब सुरक्षा जी, बहुत वेरी इंस्पिरेशनल सुरक्षा जी। आपने बिल्कुल सही बोला, थोड़ी सतर्कता, थोड़ी सावधानी, बिल्कुल सही एस्पेक्ट है कैंसर का। बिल्कुल सही तो जी बहुत हिम्मत चाहिए होती है अपने किसी क्लोज वंस को खोना और फिर उसके बारे में इतने पॉजिटिव तरीके से बात करना। थैंक यू सो मच एंड आई एम श्योर आपकी बेटी जो डॉक्टर हैं उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती होंगी उनके पेशेंट्स थे, क्योंकि एक एनेस्थीसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगी अलवर से उषा वर्धन शर्मा जी को। शी इज अ टीचर and once a teacher always a teacher. She's a content writer and वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हैं, अभी भी पढ़ाती हैं, और काफी सारे बच्चे जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं उनको भी पढ़ाती हैं। तो उषा जी, thank you Ekta, and good evening everyone. My title is Hope, but I have added an adjective to it, that is magical hope. Whether it is casualty, disaster, or ailment, hope is the only rope of survival. The moment doctor says little hope is there, your heart sinks and your eyes blink with tears. But when doctor says a little hope is there, your face lightens up and drives away all the fears. Cancer is supposed to be a deadliest of all diseases. It is synonym of death at times. But hope, with its magical vibes, keeps the cancer patients alive, because they want to be with their children, with their friends, relatives, and adhere to the family hive. Hope binds the doctor, patient, and well-wishers, a phase where no one differs. Doctor gives his best because there is hope. Patient fights the deadly disease because there is hope. Relatives wait outside with their prayers because there is hope. Because doctor has told the patient, the attendants outside, there is little hope. And through their prayers, they want to convert that little hope into more hope. Patients are not cured by the best doctors or by best medication. They are actually cured by magical hope. The word hope brings H for happiness. It fills the mind with O for optimism and makes the loved ones persistent in their faith. It makes the doctor E for efficacy.
Our inner strength gives us hope to confront physical and mental devils and defeat the deadly disease. Otherwise, pessimism is always lurking around to dampen our spirits. Hope means to accomplish our mission impossible and create a history that is unwashable. Humans are actually each other's hope. And this celestial human herb is found only on this globe. Thank you. So beautiful. So beautiful. You have lovely magical hope. बहुत ही बढ़िया आपने hope word को इतना खूबसूरत ढंग से पेश किया कि it's really inspiring. I want to say something कि सब लोग जो group में हैं, would everyone please put their poems in the group ताकि हम लोग बाद में भी आराम से उनको पढ़ सकें और उनका आनंद ले सकें. Definitely. It's the only thing alive. Yes. So after this, I would like to invite Dr. Aditya Gupta. He is a director of CyberKnife and a neurosurgeon in Artemis Hospital, Gurgaon. So he's the best neurosurgeons that I have ever come across, and मैंने उनके साथ बहुत कुछ सीखा है when I worked with him. And उनकी सबसे खूबी ये है कि he is not just a surgeon, but he is a radiation oncologist for brain tumors also. So he wears both the hats. And he writes beautifully. English में लिखते हैं. Dr. Aditya, we would love to hear you. Thank you so much, Dr. Indu. A very good evening to everyone. Dr. Gupta, sorry, before you speak, wishing a very happy birthday to your daughter. Oh, thank you so much. Thank you so much. I'm sorry to have been not there from the beginning. My daughter's 16th birthday today, so wow. I was with her for the celebrations. So, thank you so much, all of you, and Dr. Indu especially for the kind invitation. So, I have heard many beautiful poems in this group today. The theme I have selected is a slightly different one, and the theme is acceptance. So this is at the point where you see surgery has happened, chemotherapy has happened, radiation has happened. And finally, the truth dawns on the patient that it is the evening of their life. And the theme which I want to emphasize is simply acceptance and a very deep level of peace. I think that's a very important theme to highlight to all our patients. So the poem is titled Evening Song. So let me begin reciting that. Evening song. It is evening. I look around and celebrate all that has happened. Come ride with me. Share all that surrounds us, inside out and outside in. Let's invite life to keep on dancing through us. Grand and humble, rare and ordinary, elegant yet rustic, but always fresh and meaningful. Let's remember to rejoice is a choice that we made every day. And soon time, forever flowing, will carry me to places not near, but not too afar. Thank you. Beautiful. A beautiful message that you have conveyed, Dr. Aditya, because I think जैसे denial एक हमारा concept, denial की वजह से बहुत सारे treatments late होते हैं, उसी तरह acceptance is very, very important. I think it's a very beautiful point of view that you have brought together through your poem. And your poems always have a very deep meaning, inside out, outside in, elegant and rustic. Beautiful. Very Thank you so much. I should also write with deep meaning. हम तो ऊपर ही ऊपर उड़ लेते. Rightly said, Dr. Indu. Dr. Aditya, I'll agree with you because acceptance is always the virtue of brave, and you doctors make your patients very brave in accepting the truth. So brilliant, very brilliant. And thank you so much. I'd like to add that, to hear such amazing thoughts from doctors, really make you feel that, when a patient comes to you, the patient is definitely in the right hands. And it's
I keep telling Indu that when I talk to her or, doctors like you, it redeems my faith in them because, humanity plus being a doctor is the best combination. I think being a human and a doctor is awesome. So thank you so much. Thank you very much. It was a real pleasure. Thank you so much. Thank you. Keep on writing. And Thank please you so share much, your Dr. poetry Indu. on the platform. Thank you. Yes, I had. Thank you again. Thank you. Now I'd like to call Sharmishta Mukherjee from Delhi, who's a poet and author and helps shape up the personalities of a lot of children also. So Sharmishta, warm welcome. Thank you so much. Dr. Aditya has explained acceptance so beautifully, and Mr. Bharti, before that, he had connected divinity and nature. It was so wonderful. So my lines are, I think, in that way only. So my poem is called The Shining. The land of darkness that hosts 1,000 ships, each with a glimmer, each with a flicker of light, from distance afar. The strength that arises from the dark of the soul awaits a beautiful sunrise. How long can there be suffering? It has to end. The light, despite all darkness, shines through as the shimmering joy of hope once again. Beyond all lies harmony, peace, and calm. The moonshine, the sunshine, the stars that shines beyond yonder, the hope of seeing the ultimate, the last feel ever lost, and a dream that comes true. Thank you so much. Sharmishta always writes short poems, but with a very powerful and a strong message. Very impactful. Yes. Loved your poem, Sharmishta. I sometimes feel that maybe I ended very abruptly, I feel myself that, Wonderful. It's wonderful. Thank you so much. Now I'm going to invite Tapasya Surekha, who I thought is a miss, but is actually a Mrs. And Tapasya is a teacher and is a poet and is based in Mumbai now. And Tapasya, what do we get to hear from you today? Good evening, everyone. Thank you, Ekta. Am I audible? Yes, please. So my poem is titled Once Again. Like a million stars in the sky, each one of you have your own destiny. But when the sky turns from blue to gray, you should know dawn comes every day. So you must believe every day. You must live once again. When surrounded by uncertainty, embrace the ambiguity, bartering fears with moments of joy and laughter until the tear drops from the corner of your eyes. You must smile once again. You must live once again. When you're broken and fragile, accept blessings from a stranger, cause they are God-sent angels in disguise. Enjoy the cold breeze caressing your soul. Feel the warmth of the sun rays. And you must be hopeful once again, and you must live once again. When everything seems very distant, this is the time you put on your glasses. This is the time to see through in a new light. Your hopes and dreams will add to the glow. Shine bright and come to light. Be an inspiration for a complete unknown. You must live once again. You must love yourself once again. Thank you. You must love yourself. That's so beautiful. Just love yourself once again. So beautiful. Absolutely. So beautiful. Now I would like to invite Mr. Shivraj Gurjar. I think I can't see him here. I don't think he has joined in. So in his place, I would like to invite Mrs. Kulwant Relan.
if Mr. Gurjar is not here, I would like to invite Mrs. Kulwant Relan. ये मेरी पेशेंट हैं, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट हैं, और जिस तरह से ये जिंदगी जीती हैं वो इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए हमें मिलेगा. सो हम उनको सुनना चाहेंगे. मिसेस कुलवंत जी. Ma'am, she's coming in just 1 minute. Okay, so we'll call someone after her, then we'll call her again. Ji, Tasneem Dinojwala, she's an entrepreneur, documentary and a filmmaker and a content writer, and also runs a business with her husband, which is into the poultry business. So Tasneem, a warm welcome. Thank you, Ekta. Thank you, Madhur Club, for this chance. मेरी ये जो कविता है, ये बहुत मैंने 2 लोगों को जो करीब से देखा है, जो ब्रेस्ट के कैंसर के पेशेंट रह चुके हैं, तो उनसे इंस्पायर होके ये बहुत दिन से ये लाइंस मेरे मन में थी. तो मदर क्लब, थैंक यू ये मौका देने के लिए. मैं इनको अपने शब्दों में पिरो पाई. एक छोटा सा प्रयास है. इस कविता का नाम है आशा, और ये एक माँ की आशा है बेसिकली. आशा निराशा का ताना बाना, उठता गिरता मन में, जिंदगी किस मोड़ पे ले आई, ये क्या हुआ मेरे स्तन में. बस कुछ साल ही बचे हैं, जब कहा डॉक्टर ने, धरती सरक गई पैरों तले, बच्चों को लगी अपने गले से लगाने. क्या होगा इनका मेरे जाने के बाद, दिल रोता रहा रात भर ये सोच सोच कर. इतने छोटे से तो हैं, अभी बहुत काम है इनका बाकी. क्या सिर्फ इतना ही समय है मुझे मयस्सर. उनके मासूम मुस्कुराते चेहरों को देख सोचा मेरे मन ने, क्यों एक दुखी बीमार माँ की छवि छोड़ जाओ अपने लाडलों का दिल दुखाने. तय किया कभी दुख की छाव न आएगी इस मुख पे, हंसते हंसाते खुशियां मनाते दुनिया से विदा लूंगी मैं इस जीवन में. हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, अपनी भी उनकी भी, निराशा में नहीं आशा में बिताऊंगी जो समय बचा है अपने परिवार दोस्तों के संग. थैंक यू. So nice, beautiful. आशा नहीं, निराशा नहीं, आशा में बिताऊंगी वो समय. वेरी नाइस, एब्सोल्युटली ट्रू. यही तो हमें आशा और उम्मीद ही तो हमें क्रिएट करनी है. कुलवंत जी, आप तैयार हैं? Yes. Most welcome, ma'am. I am Kulwant Relan, retired principal. लिखना मेरी हॉबी है. मैं कोई कवित्री नहीं हूँ, लेकिन I am very lucky and fortunate that Dr. Bansal has invited me, and I have listened so many people, directors, doctors, very brilliant people. तो मैं थोड़ी सी ऐसे ही तुकबंदी करती हूँ, और वही मुझे मालूम नहीं था कि आज वर्ल्ड कैंसर डे है. आई डिडंट नो, लेकिन अब पता चला, जब मैंने सुना सबका, तो बहुत अच्छा लगा कि आप सबका जो वक्ता, जितने भी वक्ता थे, बहुत अच्छा बोले हैं. आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरीबॉडी. मैं इस वक्त सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगी कि मैं डॉक्टर बंसल की पेशेंट रही हूँ और हूँ. मुझे उन्होंने कभी भी पेशेंट नहीं समझा. मैंने भी उनका बहुत रेस्पेक्ट भी किया, और उसके साथ साथ बहुत, आई लव हर. बहुत ही नेक और बड़ी ही पोलाइट डॉक्टर है. उनको देखते ही आधी बीमारी जो है वो ठीक हो जाती है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है. तो ऐसे ही एक दिन मैंने उनको बोला था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया. आई एम हैप्पी कि आप सबको मिलने का मुझे मौका मिला, और आपका जो ये क्लब है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर बंसल एंड ऑल द डॉक्टर पीपल हियर. तो मेरी कविता का शीर्षक है, कविता क्या है, तुकबंदी है. मेरी कविता का शीर्षक है फलसफा जिंदगी का. जिंदगी क्या है. मेरे को 5 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था. उसका इलाज हो गया. दोबारा से कुछ जब हुआ तो आई मेट
Dr. Sethi, my doctor, and he introduced us to Mrs. Bansal. वो दिन और वो घड़ी बहुत अच्छी और मेरे लिए बड़ी ही अच्छी थी कि मुझे डॉक्टर बंसल जैसी डॉक्टर मिली, जिन्होंने मुझे बहुत जल्दी ठीक किया। सिर्फ इलाज से, दवाइयों से नहीं, उनकी एक मुस्कुराहट ही मेरे लिए बहुत अच्छी होती थी। बहुत आई लाइक हर, एक मुस्कुराहट मेरे को जिंदा रखती थी। और मैं ये जो लाइनें मैंने लिखी है, ये जिस दिन मेरी सर्जरी हुई है उसके ठीक 10 दिन बाद ही मैंने ये लेटे कि कुछ अपने दिमाग की उपज है कि जिंदगी है क्या। मैं नहीं डरी, मुझे उस वक्त तक पता भी नहीं था कि मुझे कैंसर, उसके अंदर कैंसर है। छोटी सी वो थी गिल्टी, लेकिन फिर जब पता चला तो भी मैं घबराई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इन्होंने मुझे बाद में काफी सपोर्ट किया। ये थोड़ी सी मैंने लाइनें लिखी हैं ऐसे ही कि ये जिंदगी का फलसफा है, सुनते और सुनाते चलिए। ये जिंदगी का फलसफा है, सुनते और सुनाते चलिए। जैसे भी जिंदगी बीते, खुशी से बिताते चलिए। मुझे कैंसर की आइडिया ही नहीं था, नहीं तो मैं उस टॉपिक को भी लेती। बचपन बीता खेल कूद में, दुनिया का कुछ पता ना था, बस मस्ती ही और दोस्ती ही थी, रिश्तों का कुछ पता ना था। फिर जवानी के जलवे देखे, मस्त जवानी ने दुनिया भुलाई। अपनी ही धुन में रहते सब, कितनी प्यारी जिंदगी बिताई। अब अधेड़ अवस्था की बारी आई। अब अधेड़ अवस्था आई और उसने अपना रंग उसने अपना ही रंग दिखाया। जद्दोजहद की जिंदगी शुरू हुई। जीवन में बहुत मुश्किलें आई, खूब संघर्ष किया सबने, बहुत ठीक ठाक गृहस्थी सबने निभाई। लेकिन वक्त पीछे ना हटा, वृद्धावस्था ले ही आया। वृद्धावस्था ले आया। जीवन के इस आखिरी पड़ाव में ने एक अलग ही रूप दिखाया। इस कमबख्त वक्त ने ऐसा सितम किया हम पर। इस कमबख्त वक्त ने, बुढ़ापे ने ऐसा सितम किया हम पर, जिस्म बूढ़ा कर दिया और दिल जमा रहने दिया। क्या बात है। जिस्म बूढ़ा कर दिया, ये 2 लाइनें मेरे हस्बैंड की लिखी हुई हैं। वो मैं अपनी हर कविता में किसी न किसी रूप में लिख देती हूँ। पर वक्त पीछे ना हटा, वृद्धावस्था ले आया। जीवन के इस आखिरी पड़ाव ने अपना ही अलग रंग दिखाया। इस कमबख्त वक्त ने ऐसा सितम हम पर किया, जिस्म बूढ़ा कर दिया और दिल जमा रहने दिया। अंगों की शक्ति कहाँ गई, जोश और होश काफूर हुए। अंगों की शक्ति कहाँ गई, जोश और होश काफूर हुए। सब कुछ फीका लगने लगा और सुख आनंद सब दूर हुए। हमने भी जवां दिखने में कोई कसर न छोड़ी। हमारी बहादुरी थी, हमारा मन था। हमने भी जवां दिखने में कोई कसर न छोड़ी, ना हिम्मत हारी,
हिम्मत भरसक करी और जवानी और जवां दिखने के हर कोशिश रखी जारी। जवां कैसे रहे हम लोग, ये मन की प्रबलता है कि अपने बालों ने रंग दिखाया बदला, बालों ने रंग बदला तो हमने कलर लगा लिया। आंखों से कम दिखने लगा तो चश्मा चढ़ा लिया। आंखों से कम दिखा तो चश्मा चढ़ा दिया। आंखों से कम दिखा तो चश्मा चढ़ा लिया। कमर बल खाने लगी तो पट्टा चढ़ा लिया। घुटने भी चरमराए, घुटने भी चरमराए, उनको भी बदलवा दिया, उनको भी बदलवा दिया। दांतों की बारी आई, दांतों ने जब दिया जवाब तो डेंचर भी लगवा लिया। अगर दिल ने साथ छोड़ा, अब दिल की बारी है, अब अगर दिल ने साथ छोड़ा तो कुछ ना कर सकेंगे। अगर दिल ने साथ छोड़ा तो कुछ ना कर सकेंगे। क्या करें, ना खुशी से आए थे ना मर्जी से जाएंगे। जब प्रभु बुलाएंगे, जब मालिक बुलाएंगे, चुपचाप चल पड़ेंगे। क्या करें, ना खुशी से आए थे ना मर्जी से जाएंगे। जब भी मालिक ने बुलाया चुपचाप चले जाएंगे, खुशी से जाएंगे। बीमार अब भी हूं लेकिन हिम्मत में नहीं हारी बिल्कुल भी। आज भी डॉक्टर बंसल से जब भी मैं मिलती हूँ तो मैं उनके साथ ऐसे बात करती है हम जैसे मेरी छोटी सिस्टर हो। इस जैसे डॉक्टर अगर सारी हो तो कैंसर के मरीज क्या, सब जितने भी मरीज हैं वो खुश भी रहेंगे और ठीक भी होंगे और हो भी रहे हैं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को तो कोई तकलीफ हुई ही नहीं इनके होते हुए। मेरे डॉक्टर और मेरे इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमारा इलाज भी किया और प्यार भी दिया, इज्जत भी दी। मैं आधी तो वैसे ही खुश हो गई। इसलिए मेरे मन से एक निकला कि खूबियां डॉक्टर बंसल की मैं कैसे करूं बयां, क्योंकि मेरा वास्ता सिर्फ इन्हीं से ज्यादा पड़ा रेडिएशन के टाइम पे। खूबियां डॉक्टर बंसल की मैं कैसे करूं बयां, जिसकी हर एक खूबी में हो हजारों खूब। तो खुशी से जी रहे हैं, बिल्कुल घबराई नहीं हूं, अभी भी नहीं। आज भी मेरे में दम है। अगर 20% मेरा अभी भी कोई है उसमें बीमारी तो मुझे कोई फील नहीं हुआ। मैं कभी नहीं रोई, कभी नहीं घबराई। आज भी मैं यही कहती हूँ कि इस दुनिया में जिसने आना है उसने जाना भी है, इसलिए खुशी से जियो, जितने पल जियो जी भर जियो, मुस्कुरा के जियो, फासले मिटा के दिल मिला के जियो। ये मेरी यही मेरी इस इन पंक्तियों में यही मेरा संदेश है, यही मेरी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत प्यारा आपने बोला। बहुत ही हम समय का अभाव है, नहीं तो हम नहीं चाहते थे कि आप हम और भी आपको सुनना चाहते थे, बट मेरे पास और लिखा था लेकिन मालूम नहीं था कि कैंसर डे है। मैम अभी नहीं सुन पाएंगे क्योंकि सब लोगों के घर में लोग डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। और कुछ पोएट्स अभी और बचे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबकी, बहुत ज्यादा। थैंक यू मैम। आप लिव लाइफ क्वीन साइज का एक चलता फिरता एग्जाम्पल है। थैंक यू सो मच। आपने अपने आप बीती और अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिए। गम का दौर भी आए तो मुस्कुरा कीजिए, ये मैसेज दिया है उन्होंने जी। बहुत अच्छा जी आगे बढ़ते हुए समय को ध्यान में देते हुए मैं वैशाली तांबे जी को बुलाना चाहूंगी, जो नागपुर से हैं, एक टीचर हैं, पोएट हैं और आज एक काफी खास दिन भी है उनके लिए। वैशाली जी आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। और मेरी पंक्तियां शुरू करने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, एक अपील है, एक निवेदन है मेरा, एक रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि कभी कभी दर्द को कुरेदा ना जाए,
जो लंगड़ा होता है ना, यदि उससे पूछ लो कैसे हो भाई, तो वो उसमें भी बौखला जाता है, वो घबरा जाता है, वो डर जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने शब्दों को मर्यादा देते हुए, बांधते हुए उन लोगों से वैसा बर्ताव करना होगा जिससे कि उन्हें बुरा ना लगे। और ऐसी ही कुछ जिंदगियां मैंने अपनी आंखों के सामने देखी है, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी इन पंक्तियों को रचा है। मुझे मत रोको। कभी कभी हालचाल पूछने वालों से ही ज्यादा घबराहट होती है, दर्द तो फिर भी सहन कर लेता है इंसान। मुझे मत रोको, मुझे अच्छी लगती है अपनी जिंदगी। मुझे मत रोको, मुझे अच्छी लगती है अपनी जिंदगी। पंख पसार कर ख्वाबों के आसमान में अपनों का साथ पाकर उड़ना चाहती हूँ मैं दर्द से परेशान हूँ। मुझे अच्छी लगती है अपनी जिंदगी। पंख पसार कर ख्वाबों के आसमान में अपनों का साथ पाकर उड़ना चाहती हूँ मैं। मत रोको मुझे, बहना चाहती हूँ मैं। मत रोको मुझे, बहना चाहती हूँ मैं। समय के बहाव में एक साधारण सी जीवन शैली अपनाकर चलना चाहती हूँ मैं। बहना चाहती हूँ मैं समय के बहाव में, एक साधारण सी जीवन शैली अपनाकर चलना चाहती हूँ मैं। तुमसे ऐ जिंदगी कदम मिलाकर मत रोको मुझे। उस पीड़ा से निजात पाना चाहती हूँ, उस पीड़ा से निजात पाना चाहती हूँ जिसने मुझे ही नहीं सारे परिवार को, सारे परिसर को जकड़ लिया है बनकर कैंसर। उस पीड़ा से निजात पाना चाहती हूँ जिसने मुझे ही नहीं सारे परिवार को, सारे परिसर को जकड़ लिया है बनकर कैंसर। मत रोको मुझे, मैं अपनी मुस्कान के साथ सबकी मुस्कान चाहती हूँ। एक मौका तो दे ऐ जिंदगी जीने का, फिर देख। एक मौका तो दे ऐ जिंदगी जीने का, फिर देख। मैं हर तकलीफ से उभर कर सबके सामने, सबके लिए मिसाल बनना, जीना चाहती हूँ मैं, जीना चाहती हूँ मैं। मत रोको मुझे, जीना चाहती हूँ मैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। सभी जीना चाहते हैं। बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर, धन्यवाद। दर्द मत भूलिएगा। बहुत अच्छी बात वैशाला, वैशाली बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अब मैं मोनिका गोयल दीवान को आमंत्रित करती हूँ, जो कि एक एचआर प्रोफेशनल है और मदरहुड क्लब की चीफ चेयरिंग ऑफिसर है। तो मोनिका, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच एकता, थैंक यू एवरीवन। इतनी अच्छी अच्छी पोएम सुनने के बाद मेरा टॉपिक, आई जस्ट शेयर माय टॉपिक। माय टॉपिक इज होप, जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे हैं। सो आई हैव ट्राइड टू राइट समथिंग। व्हाट एग्जैक्टली इज होप? Hope, what is it? It's that little tingly feeling that perches in my soul. It sings a melody without any words and never stops at all. It makes that little bird fly across the skies. It keeps the ship sail through the thunders and the storms. Does it know no fears? It does. It surely does. But hope silently strengthens our mind and gives promises of beautiful tomorrows. Hope leads to the winds of change. It makes a specially abled go over a mountain range. It makes us sleep peacefully through the night. Timidly, she keeps sitting by our bedside to scare away any fright. Through my tears, it has whispered time and again, I will balm your emotions and help you through the pain. It's that light at the end of the tunnel which broadens my life's funnel. It makes me struggle against the tides. It helps me pass through the bumpy rides. Fumbling and stumbling as we move in the dark,
Hope is that streak which keeps up the spark. Howsoever it might feel, easy to leave, all the time it ensures that we hit the mark. Hope tells me flowers will blossom and grow. Seasons would change. Life would make me face challenges. Some would be tough, some funny and strange. With hope engulfing and surrounding me, I would get past all, but in a wee. It comes in many forms: courage, motivation, and positivity. But the fact remains, it stays with the gritty. So I take a pledge. Before getting written down in the history, with all my success and failures, I will rise. I will rise once again to pay back to the promise, to me, that hope has given. To me, that hope has given. Thank you. Brilliant. Brilliant. Thank you. Brilliant. What a beautiful Thank you. definition of hope. Thank Very you. positive. Brilliant. Very, very nice. Hope silently strengthens our mind. Yes, it does. And before we Rightly said. invite our last but not the least, our special poet, I'd like to make a very, very hopeful and a positive announcement. We've been talking about hope for the last 2 hours, but Motherhood Club has been able to bring that hope in the life of one cancer patient who comes from the humble background. We started raising funds for her from Makar Sankranti, which is 14th January, till today. And we are delighted to share that we've been able to raise 75,000 rupees for her treatment. And the same has been given to her. We are indeed indebted to all the contributors, the members of Motherhood Club, clients of My Little Greens, Manus Wealth, and friends and families who have supported us in this endeavor. We won't just stop at words, but we'll actually action them. And with this, I'd like to invite Ila Pachauri, founder of My Little Greens and the Chief Happiness Officer of Motherhood Club, to recite her poem and also conclude the session with her vote of thanks. So a warm welcome, Ila. Thank you so much, Ekta. And thank you all so much for your such motivating poems. और मुझे actually अब लग ही नहीं रहा है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए. But because I am one of the participants, और वही है कि जैसे किसी ने कहा था अभी कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो हम लोगों का as creators, जो रचनाकार होते हैं, ये हमारा फर्ज होता है कि हम अपनी रचनाओं के जरिए लोगों में उम्मीद फैलाएं. So let me read my poem first and then we'll conclude the session. Thank you so much, Ekta. Thank you so much. अब मैं जीना सीख रही हूँ. ये है मेरी कविता का नाम. अब तक यूं ही जिया करती थी, छोटी छोटी बातों पर शिकायतें शिकवे किया करती थी. अब मैं जीना सीख रही हूँ, इस पल में जीना सीख रही हूँ. अब मैं जीना सीख रही हूँ, इस पल में रहना सीख रही हूँ. मुट्ठी में कैद कर रही हूँ फुर्सत के पल, वो प्यार भरे लम्हे, वो हंसते हुए पल. दर्द में भी हंसना सीख रही हूँ, गीत गुनगुना कर दर्द की टीस को दबा रही हूँ. बहुत शिकायत किया करती थी उस ऊपर वाले से, अब शुक्राना देना सीख रही हूँ. यूं ही जाया कर रही थी अपनी जिंदगी को अब तक, यूं ही जाया कर रही थी अपनी जिंदगी को अब तक, अब संभाल संभाल कर खर्च कर रही. एक खिलती हुई कली इंद्रधनुष के सातों रंगों में, बच्चों की खिलखिलाहटों में अपना जीवन ढूंढ रही हूँ. गहरी हो रही है नजर, नजरिया बदल रहा है मेरा. गहरी हो रही है नजर, नजरिया बदल रहा है मेरा. छंट रहा है कोहरा, अब साफ साफ देख रही हूँ. सूरज रोज उगा करता था, चांद भी मुस्काता था. अब रोज सूरज से बातें करती, चांद से बतिया रही हूँ. न गुजरे कल को कोस रही, न कल के सपने पोस रही हूँ. न गुजरे कल को कोस रही,
न कल के सपने पोस रही हूँ, अपने आज को देख देख कर अब मैं जीना सीख रही हूँ। थैंक यू सो मच। हम बहुत छोटी छोटी चीजों पे परेशान होते हैं, और जब हमारे ऊपर ऐसी कोई विपदा आ पड़ती है तब हम लाइफ की इम्पोर्टेंस को, छोटी छोटी खुशियों को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि देयर इज होप एवरीवेयर। और आज की जो ब्यूटीफुली पेन डियर ईला, वेरी नाइस। छोटे से प्रयास में बड़ी बात कह गई आप। Thank you so much. And now it's time to conclude our session. So all those who are viewing us from outside, all our chief guests, guest of honor, special guests, our able doctors and poets, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ टीम मदरहुड क्लब की तरफ से। और ये आज जो हमने प्रयास शुरू किया है, यकीन मानिए ये आखिरी नहीं है। जैसा एकता ने बोला, हम सिर्फ शब्दों के माध्यम से नहीं, हम कुछ काम भी करके दिखाने में यकीन करते हैं। छोटे छोटे कदम ले रहे हैं जो अब थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, और वो आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो सकते। सो प्लीज बी देयर विद अस इन ऑल आवर एंडेवर्स एंड एफर्ट्स। I thank you all on behalf of Team Motherhood Club. Stay safe, everyone. Bye bye. Dhanyavad. And we are grateful to the Oncology Forum and Dr. Indu Bansal for giving Motherhood Club this absolutely experience and to hear such wonderful poets across the globe. And thank you, Indu, for always being there with Motherhood Club. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, everyone.